Okay. I hope human physiology part we had done, human physiology basic concept, introductory concept we had done with this. Am I right? Yes, What sir. is physiology? Physiology कैसे पढ़ना है? Physiology क्या होती है? कैसे सेल का मेटाबॉलिज्म बताने वाला कंसेप्ट एस्पेक्ट की फिजियोलॉजी है. हायरार्कियल फॉर्म में भी हमने देख लिया था कि सबसे पहले सेल का सेल बायोलॉजी हमने पढ़ा. सेल बायोलॉजी के बाद मैडम पढ़ा रही हैं आपको सेल बायोलॉजी. देन उसके बाद हमने पढ़ना था फिजियोलॉजी. वी स्टार्टेड विद ह्यूमन डाइजेशन. और उस ह्यूमन डाइजेशन में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि वॉट एवर द फिजियोलॉजी विल गो थ्रू, हमें बेसिक 4 या 5 उसके एस्पेक्ट्स देखने होते हैं. नंबर 1 वाज इवोल्यूशनरी ट्रेंड. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Second one was, next one was Anatomy. Anatomy. structural and anatomical part. Third one was Mechanism. mechanism. Fourth one was Regulation. regulation. And fifth one was Disorder. Disorder. perfect. Perfect. Right? So कुछ स्टूडेंट्स कल थोड़ा सा पढ़े होंगे, है ना. ए फेज के बच्चे कुछ पढ़े होंगे. डोंट वरी, आज थोड़ा सा कंबाइंड पार्ट में चलाने वाला हूं आपको. तो ए वाले बच्चे थोड़ा सा शांति से सुनते रहेंगे, बी वाले जो है उसको ध्यान से समझेंगे, है ना. सो नाउ मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इवोल्यूशनरी ट्रेंड बताया. दैट इवोल्यूशन ट्रेंड में वी आर स्टडीड different types of feeding patterns like autotroph, heterotroph, chemoautotroph, parasite. Am I right? B phase. Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes. और उसके लिए हम लोगों ने एक चार्ट भी बनाया था, एक टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ा था. Am I right? Yeah. Yes, Yeah. sir. Yes. Okay, perfect. और उसके बाद मैंने आपको कंप्लीट एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम लेकर राइट फ्रॉम बकल कैविटी टू एनल पोर हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया था. Am I right? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. B phase. B phase. Am I right? Yes, sir. Perfect. That means right from buccal cavity से लेकर pharynx, then esophagus, then stomach, then small intestine, then large intestine, then large intestine के 3 पार्ट: ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, then anus and the rectum, and then anus. Perfect. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Anyone can tell me the correct sequence from B phase. Anyone, the student from B phase can tell me the complete sequence right from buccal cavity to anal pore. Anyone, please raise your hand. Sir, may I? Yes, Bolly. The digestive tract begins at the mouth, followed by buccal cavity. Then food passes through pharynx, then enters into 25 centimeter long esophagus or food pipe. Perfect. Then the esophagus opens into stomach through cardiac sphincter. Then food Yes. enters into cardiac region, then Perfect. fundic region, body, and then pyloric. Food enters into first part of small intestine through pyloric sphincter, Yeah. which Very is good. called duodenum, which is also forms the shortest part of small intestine with length 25 centimeter. Then food passes into 2.5 meter long jejunum and finally enters into ileum, which is the longest part of small intestine with length 3.5 meter. Then food enters into large intestine through ileocecal valve. Food comes into cecum, which is 6 centimeter long and also hosts some microbes. Then cecum opens into colon, which is divided into 4 parts. First part is formed by ascending colon, and because of hepatic flexus, it becomes a transverse colon and forms the second part of large intestine. Then third part, descending colon, is formed because of splenic flexus. Descending colon with further extension forms fourth part called sigmoid or pelvic colon as it lies in pelvic region. This opens into 13 centimeter long rectum, which is further extended to anal canal, which is 3.8 centimeter long.
and has two sphincters, internal, which is involuntary, and external, which is voluntary in action. And then finally, the food passes through anus. क्या बात है, perfect, very nice, very well said and very well learned, very nice स्पंदन, मजा आ गया, फर्स्ट क्लास, एकदम शानदार, Thank you, sir. बहुत ही बढ़िया, मतलब परफेक्शन के साथ साथ कंसेप्ट भी था, नॉलेज भी था, इंफॉर्मेटिव भी था, है ना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, चलिए, एनीवेज बहुत शानदार। इसके बाद बच्चों हम लोगों को जो पढ़ना है दैट इज 1 by 1 एक एक पार्ट हम लोगों को पढ़ना था। तो लेट अस स्टार्ट विद बकल कैविटी। कल ए फेस का कुछ हुआ था लेकिन बहुत क्लियर इमेजेस नहीं थी, इसलिए हम रिवाइजिंग विद दिस। हेडिंग डालते हैं बकल कैविटी। ऑल आर ऑल सेट? यस सर। Yes, sir. वेरी नाइस। हेडिंग डालते हैं बकल कैविटी, माउथ, परफेक्ट, माउथ एंड बकल कैविटी। स्टेटमेंट भी लिखते हैं और समझते भी हैं स्टेटमेंट के साथ साथ। माउथ और बकल कैविटी, एनसीईआरटी भी अपने साथ रखिए, एनसीईआरटी भी रखिए और हम लोग ट्रैक भी समझते चलते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, स्टेटमेंट लिखते चलिए मेरे साथ और समझते भी चलिए। Point number 1, two movable lips, two movable lips। बच्चों क्लियरिटी है आज? ए फेस कल के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है? यस सर। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी साथ में रखिएगा। कहीं भी कंफ्यूजन आ सकता है तो तुरंत मुझे बताएंगे कि सर यहाँ थोड़ा सा डाउट लग रहा है ना। हमने लिख दिया टू मूवेबल लिप्स, ठीक है। इन्हीं लिप्स को कहते हैं बच्चों लेबिया। टू मूवेबल लिप्स दैट इज कॉल्ड लेबिया, ठीक है। नंबर 2, द स्पेस between lips and gums is anyone? वेस्टिब्यूल। Vestibule. The space between lips and gums is vestibule. Okay. Who is Amir Zaidi? Who is entered with Amir Zaidi? I am a new child. Who's there? Who is Amir Zaidi? I am a new child. You are the new candidate. Yes, sir. Amir, when you admitted? Yes, sir. When you admitted? When you taken the admission? On 6th. No, On 6th? Okay, fine. चलिए, म्यूट कर लीजिए। Okay, the space between lips and gums is vestibule. Point number 3. Lining of vestibule contains mucus glands. जब कुछ तीखा लगता है तो सीक्रेशन वहां से होने लगता है और वो इजी बना देता है बॉडी। दैट इज म्यूकस ग्लैंड। स्पंदन दिख रहा है बराबर? Yes, sir. परफेक्ट। नेक्स्ट, oral cavity is lined by stratified squamous epithelia.
stratified squamous epithelia. Noted? Mitali, you are the new candidate. No, sir. Okay. Stratified squamous epithelia. What is stratified squamous epithelia? Day before yesterday, sorry, yesterday only, when I'm dealing with A batch, मैंने आपको बताया था stratified मतलब होता है layered structure, and that layered structure ठीक वैसा ही होता है जैसे एक मिठाई का नाम मैंने बताया था. What was that? Papadi. सोन पापड़ी. उसमें जैसी layers बनी होती है दोस्तों, वैसे ही layered structure होता है, उसे कहते हैं stratified. Okay? चलिए next. Roof of oral cavity is called palate. Roof of oral cavity is called palate. Roof of oral cavity is called palate. Point number 6. Upper hard palate and lower soft palate. Point number 7. Hard palate has small ridges. Hard palate has small ridges. Rotate. Okay. उसी को कहते हैं पैलेटाइन रूजेस. यही लिख देता हूं. पैलेटाइन रूजेस. पैलेट का पार्ट है तो पैलेटाइन रूजेस. ओके. Posterior most part of soft palate. Posterior most part of soft palate is known as that hangs in pharyngeal region is पढ़ा किसी ने? uvula. What uvula does? आपको पता होना चाहिए what uvula does. Uvula closes the internal nostrils. Uvula closes the internal nostrils during agglutination. नोटेड बच्चों, प्लीज नोट. और एनसीईआरटी भी देखिए कुछ छूट रहा है क्या? Noted, doctors? Arrangement of teeth, sir.
Doctors noted? Doctors noted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ये पार्ट में आप मुझसे पूछो कि सवाल कहाँ आ रहा है तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं लगता कि ओरल कैविटी या बकल कैविटी में कोई सवाल बनता है। हाँ, सवाल जरूर बन सकता है, दैट इज पैलेटाइन रूजेस, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनका जो हार्ड पैलेट होता है, अपर पैलेट होता है, उसमें से बड़ी बड़ी खांचे बनी होती है। ये ऐसी खांचे बनने की वजह से क्या होता है, जैसे ही वो किसी का मांस पकड़ते हैं या किसी एनिमल को पकड़ते हैं तो वो स्लिप आउट नहीं होता और वो उसमें अटक जाता है। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके, परफेक्ट। सेकेंड पार्ट बच्चों हम देखते हैं। एक बकल कैविटी वाला पार्ट हो गया, उस बकल कैविटी में सेकेंड पार्ट अपने को देखना है, दैट वाज माउथ। माउथ का मैंने पहले बकल कैविटी वाला पार्ट बताया। सेकेंड पार्ट यदि मैं आपको बताने जाऊं तो टीथ देखते हैं। हेडिंग डालिए टीथ। इस पर क्वेश्चन जरूर बनते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। टीथ, ओके। चलिए, टीथ के स्ट्रक्चर में पॉइंट्स लिखते हैं। नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक? ओरिजिन बताया था कल, ए फेस। टीथ का ओरिजिन कैसा होता है? एक्टोमेसोडर्मल। परफेक्ट, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। गायत्री, लेकिन इसमें कौन सा एक्टोडर्मल है एंड विच वन इज मीजोडर्मल? Sir, enamel part is ectodermal and everything else is mesodermal. परफेक्ट। इनेमल जो होता है, जिसे सब यही साथ में लिखेंगे, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम, यही इसको लिखना है आपको। एक्टोडर्मल जो होता है दैट इज इनेमल, सॉरी इनेमल जो है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। रेस्ट कंप्लीट टीथ, रेस्ट कंप्लीट टीथ, ये कैसा होता है? मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। इनेमल जो है हार्डेस्ट पार्ट होता है। डू यू नो इनेमल किस सब्सटेंस का बना है? ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? Both. Both इनऑर्गेनिक, मोर इनऑर्गेनिक, सिंस इट इज हार्डेस्ट। ऑर्गेनिक इतना हार्ड नहीं होता। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2। ये क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन बन रहा है, मैं बाद में रेड से सर्कल कर दूंगा जो नीट का क्वेश्चन मुझे लगता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इट हेल्प्स इन मास्टिकेशन। टीथ क्या मदद करता है? हेल्प्स इन mastication. What is mastication? Mixing of food with saliva. Mixing of food with saliva, that means chewing and addition of saliva. And addition of saliva. और बच्चों आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जो भी हम फूड खाते हैं वो अलग अलग स्टेप में अलग अलग नाम से नीचे तक पहुंचता है। जो आप खाते हैं that is called as food, that you ingest that is food, but जो swallow आप करते हैं that is bolus, that passes through esophagus. When it reaches to stomach, it is called as chyme. And when it reaches to intestine, it is called as chyle. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं। upper jaw teeth, MA batch, what is upper jaw teeth? Maxillary. Maxillary teeth, क्योंकि upper jaw को क्या कहते हैं? Maxilla. And lower jaw teeth? mandillary. Mandibular teeth.
नोटेड? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। आपको उस समय ये भी बताया था मैंने, मैंडिबल सिंगल बोन है या डबल बोन? डबल। अरे मैंडिबल सिंगल है, मैंडिबल सिंगल है। लोअर जॉ सिंगल है। इसको नोट कर लो बच्चों, क्योंकि कहीं ना कहीं यही तो एक सवाल पूछा जाता है कई बार। लोअर जॉ सिंगल बोन, लोअर जॉ सिंगल बोन, और मैक्सिला डबल। डबल बोन मींस डबल लेयर नहीं, दो अलग अलग है, इधर पे एक और इधर पे एक। अपर जॉ दो इसका बना हुआ है, जबकि लोअर जॉ सिंगल इसका बना। परफेक्ट, नोटेड? Yes, sir. परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों टूथ का स्ट्रक्चर। उसके पहले कैविटी ऑफ द टीथ, कैविटी ऑफ द टीथ क्या बताया था कल? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी का क्या खासियत है, क्या क्या होता है पल्प कैविटी में? Lymph, blood vessel, lymph, nerves, connective tissue. It contains what? plexus, Yes, very nice. कौन बोला? Gayatri. Plexus. What is the difference between plexus and flexus? The plexus will contain blood vessels, nerves, connective tissues, etc. While flexus will be an sort of empty space, like not a part of the system we are studying. Perfect. Blood vessels, lymph vessels, nerves, इन सब असेंबली होती है बच्चों, उन सब की असेंबली कहलाती है प्लेक्सस। ओके, नोटेड? डॉक्टर्स नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. I'm sharing the image and switching to the dental structure. Okay, switching to dental structure. Hope you can see the screen. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो आप देख पा रहे होंगे कि तीन पार्ट में बना हुआ है टूथ। वन इज क्राउन, वन इज नेक, वन इज रूट। क्राउन इज अपर मोस्ट पार्ट, नेक इज मिडल रीजन, whereas root is a fitted part. Crown upper part, neck middle region, root is fitted part. जिसमें फिट है that is socket, वो gums, उन gums में वो fitted है ना, वो jaws की जो gums है उसमें वो fitted है। अब वो जो socket जिसमें वो fit है वहां पर कैसे fit है, तो उसके लिए वहां पर दी गई है सबसे पहले alveolar bones, alveolar bones है ना। वहां पर जो alveolar bones में जो fit है उसमें ऊपर वाला पार्ट सबसे लिखा हुआ है enamel, which is the hardest substance known in animal kingdom, which is formed of calcium material, inorganic substance. After that, if you will find there is a layer dentine. इनेमल के बाद एक लेयर बनी है डेंटाइन, बट वो डेंटाइन बनता किससे है, उसके लिए एक मैंने लेयर बतानी है आपको, लाइक दिस। कैन यू सी दिस रेड कलर स्ट्रक्चर? Yes, sir. ओके, वो जो रेड कलर स्ट्रक्चर मैंने बताया बच्चों, वहां पर मैंने लिखा, या आपको भी लिख लेना है,
आपको भी लिख देना है formed of odontoblast. Formed of odontoblast. ओडोंटोब्लास्ट का मतलब होता है, ब्लास्ट मतलब होती है फॉर्मिंग सेल्स, ब्लास्ट मतलब होती है फॉर्मिंग सेल्स, और क्लास्ट मतलब होता है डिस्ट्रॉइंग सेल्स। ब्लास्ट मतलब फॉर्मिंग और क्लास्ट मतलब डिस्ट्रॉइंग, है ना। तो ब्लास्ट मतलब बनाने वाली, तो वो जो लेयर बनी वो किसकी बनी है? फॉर्म्ड ऑफ ओडोंटोब्लास्ट that synthesize or that produce secrete डेंटाइन। आइवरी जो होता है एलिफेंट टस्क में बड़ी आसानी से दिखता है, दैट आइवरी इज फॉर्म्ड ऑफ दिस लेयर। तो बाहर की लेयर हो गई दोस्तों इनेमल, अंदर हुआ डेंटाइन, वो जिससे बन रहा है वो लेयर, एंड उसके बाद अंदर की तरफ है पल्प कैविटी, दैट वी ऑलरेडी wrote it in our notes. Pulp cavity contains plexus in which blood vessels, lymph vessels, nerve fibers, connective tissues. और जब ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस बार बार खाने से या प्रॉपर माउथ वॉश या क्लीन न करने से जो एसिड सीक्रेशन बकल कैविटी में रहता है, उस एसिड सीक्रेशन की वजह से इनेमल डिस्ट्रॉय होने लगता है। वो जो इनेमल डिस्ट्रॉय होता है तो उस इनेमल की वजह से इनेमल के डिस्ट्रॉय होने की वजह से कुछ भी फूड सब्सटेंस जब आप खाते हैं, लाइक ज्यादा ठंडा हो, ज्यादा मीठा हो, सिंस इनेमल इज डिस्ट्रॉयड, डेंटाइन इज नॉट टू मच टफ, सो इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू पल्प कैविटी प्लेक्सस मटेरियल, इसीलिए वो सेंसेशन जान पड़ता है। ज्यादा मीठा खाने पे एकदम सेंसेशन होता है, खट्टा खाने पे सेंसेशन होता है, ठंडा खाने पे सेंसेशन होने लगता है, जस्ट बिकॉज इनेमल की लेयर डिस्ट्रॉयड हो गई है। परफेक्ट, गॉट माय पॉइंट? यस सर। ओके, अंदर बच्चों जो प्लेक्सस बना हुआ है उसमें ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ हैं, नर्व्स हैं, जो दिखाई भी गई हैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। देन दैट पार्ट इज रूट कैनाल, और इसलिए आपने सुना होगा ट्रीटमेंट के दौरान आरसीटी, दैट इज व्हाट? रूट कैनाल थेरेपी। ओके, बस इसके बाद वो जिसमें फिट है वो फिटेड पार्ट देखिए, दैट फिटेड पार्ट जिससे वो ज्वाइन हुआ है गम से, दैट इज सीमेंटिंग पार्ट, और जहां पर वो अटैच हुआ है दैट इज पेरिडोंटल लेगामेंट। जहां पर अटैच हुआ है दैट इज व्हाट? पेरिडोंटल लेगामेंट। जिस बोन में फिट है दैट इज एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन अभी नाम थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि एल्वियोलाई तो लंग्स में होते हैं, थोड़ा सा एयरी पार्ट जिसमें है जहां पर फिटेड हो सकता है, दैट इज एल्वियोलर बोन। परफेक्ट। तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इस पर सवाल बहुत नहीं आए हैं, बट सवाल जिस पर आता है वो केवल है डेंटाइन किससे बनता है, दैट इज ओडोंटोब्लास्ट। इसके अलावा इस डायग्राम में कोई सवाल नहीं है, इसके अलावा इसमें कोई सवाल नहीं है। परफेक्ट। लेकिन अब कल जो एक स्ट्रक्चर बताना था, मैंने नाम आपको ओके यदि आप यहां पर देख पा रहे होंगे ए बैच स्टूडेंट्स एंड बी बैच स्टूडेंट्स, तो मैंने ब्लड सप्लाई भी लिख रखा है, बिकॉज वी आर रेजोनाइट्स, वी मस्ट नो बिट मोर। ब्लड सप्लाई जो है, टीथ को ब्लड सप्लाई, आप जो अभी अपन टीथ लिख रहे थे, नोट्स बना रहे थे, उसमें लिखेंगे इट इज सप्लाइड with arterial blood, it is supplied with arterial blood through maxillary arteries, Gayatri, noted? Yes, sir. ओके, जाहिर सी बात है कि यदि मैक्सिलरी टीथ है तो उसको सप्लाई करने वाला कौन हुआ? मैक्सिलरी आर्टरीज, है ना। तो मैंडिबुलर नहीं हो गया, वो ओवरऑल ब्लड सप्लाई हो गया, है ना। लेकिन वहां से ड्रेन आउट भी होगा, वेन्स के थ्रू ड्रेन आउट भी करना पड़ेगा ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। भाई ऑक्सीनेटेड ब्लड तो उसको सप्लाई करने के लिए हो गया, दैट ऑक्सीनेटेड ब्लड विल सप्लाई एंड विल गिव द ऑक्सीजन, बट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड शुड बी कैरिड अवे ना, that deoxygenated blood will be carried away by venous drainage. Next point जब बोर्ड पर अभी हम लिख रहे थे उसमें नोट्स को कंटिन्यू करेंगे। venous drainage is by number of veins, by number of veins
that emptied into internal jugular vein. That emptied into internal jugular vein. But this is the matter of blood supply. This is the matter of blood supply. तो कहीं ना कहीं इस ब्लड सप्लाई को गार्गी मैडम, गार्गी पाठक सुन रही हैं आप? Yes, sir. ये तो बच्चे हुआ ब्लड सप्लाई, कहीं ना कहीं हमें उसको नर्व सप्लाई भी करना पड़ेगा। जब उसको हम नर्व सप्लाई करते हैं, पलक संधान, डॉक्टर पलक सुन रही हैं आप? Yes, sir. ओके डॉक्टर पलक, ये ब्लड सप्लाई हुआ। नर्व सप्लाई की यदि मैं बात करता हूं तो अलग अलग सप्लाई है, अपर मैक्सिलरी नर्व और लोअर मैंडिबुलर नर्व। अपर मैक्सिलरी नर्व, लोअर मैंडिबुलर नर्व। नोटेड? Yes, sir. ओके अब ये मैंने नीचे जो लिखा है उसको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे पूछूंगा ये कौन सी नर्व है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है बच्चों, उसमें ये 5th क्रेनियल नर्व का पार्ट है ना, वो बट हम तब पढ़ेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे। परफेक्ट। सो इस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, बहुत रफ इसमें एक स्ट्रक्चर बना लेना है। बहुत फेयर स्ट्रक्चर बनाते समय खराब करने का जरूरत नहीं है। परफेक्ट। इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि 3 पार्ट होते हैं। क्राउन वो एक्सपोज पार्ट होता है, मिडिल वो नेक रीजन होता है, और रूट वो फिटेड पार्ट होता है जो कि बोन्स गम्स में फिटेड अटैच होता है पेरिडोंटल लेगामेंट से। आइवरी बनती है ओडोंटोब्लास्ट से, एंड ओडोंटोब्लास्ट को ब्लड सप्लाई होता है प्लेक्सस से। जो ऑक्सीडेटेड ब्लड आएगा वो मैक्सिलरी आर्टरी से, जो जाएगा वो जगुलर वेन को, और नर्व सप्लाई में अपर टीथ मैक्सिलरी नर्व्स, लोअर मैंडिबुलर नर्व्स, व्हिच इज द 5th क्रेनियल नर्व्स। स्पंदन, अग्री? Yes, sir. ओके पूर्व भाई, समझे कि नहीं समझे? समझा सर। परफेक्ट। चलिए बैक टू द पॉइंट्स। इसमें आपने पॉइंट नंबर 5th और 6th ऐड कर लिया, एम आई राइट? Yes, sir. I think I should take the image also and should share with you. चलिए images I'll share with you. I've taken the photographs. अब देखना है टीथ का सक्सेशन के बेस पे डिवीजन, यानी ओवरऑल टीथ के क्लासिफिकेशन को हम कैसे समझते हैं। डेटा वाइज आपको लिखना पड़ेगा। इनेमल जो है दैट इज कंप्लीट फॉर्मूला इनेमल का। एनीवन कैन टेल मी इनेमल? Calcium phosphate, CaPO4. CA3PO4, CA3PO4 twice and COH twice, H2O. Calcium phosphate 85%, calcium लिख ही लेते हैं because ये भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया था 4th, 5th, 6th, 7th. Enamel has composition. Enamel has composition. Enamel का composition क्या है देखते हैं, which is given in our module. CA3PO4 twice, COH twice, H2O. यानी इसमें क्या क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट,
Okay. Now we'll go for tabulated teeth. कितने बेसिस पे बताया था कल ए बैच? 4 4 basis. Which one? Differentiation, attachment, succession, and formula. Attachment, succession, and formula. Perfect. चलिए, डिफरेंशिएशन जो है बच्चों, दो टाइप के टीथ होते हैं. कौन कौन से? Homodont and heterodont. Homodont and heterodont. नाम से ही समझ में आ रहा है होमोडोंट क्या होगा? सेम टाइप ऑफ टीथ, डिफरेंट टीथ, है ना? अब डिफरेंट टीथ में कौन कौन से होते हैं? एनीवन? Incisors, Incisor, canine, premolars, and molars. Canine, premolars, and molars. Canines, molar and premolars. premolars, Yes. and molars. Molar. Okay. Can you tell me for incisors are for what? Cutting. Cutting. Bite, cut, crop. Bite करना, cut करना, crop करना. For canines, Piercing. Tearing. piercing and tearing. चीर फाड़ के लिए. Perfect. Premolars, Grinding. crush and grind. Perfect. Molars, ये भी chewing Chewing, crushing, and grinding. और grind. Please note. Okay. सिंपल था ये तो. Okay. अटैचमेंट की बात करते हैं. अटैचमेंट कितने टाइप के बताए थे? अटैचमेंट 3 टाइप्स. कौन कौन से? Acro, pleuro, or thico. Acrodont. Second one was pleurodont. And third one was Thicodont. thecodont. चलिए, एक्रोडोंट कहां से फिट था? From top. अपेक्स पार्ट. अपेक्स मतलब टॉप पार्ट. ये टॉप पार्ट फिटेड होता है. इसीलिए ये कैसे थे? Easily break and regrow. ब्रेक ऑफ. इसका एग्जांपल क्या बताया था? Shark. इजीली टूट भी जाते हैं और इजीली रिप्लेस भी हो जाते हैं. तो एक्रोडोन मतलब जो मैं बात करूं जैसे टीथ है तो अपाइकल पार्ट को सिर्फ होल्ड करके रखा है तो इजीली टूट जाता है ना, क्योंकि सिर्फ अपेक्स अटैच. प्लूरोडोन की जहां तक बात करते हैं तो प्लूरोडोन में क्या है? अटैच From one side. विथ जॉबोन. इसका एग्जाम्पल क्या बताया था बच्चों? एग्जाम्पल लिजार्ड्स और थीकोडोंट. थीकोडोंट क्या होता है एक्चुअली? Excuse me, sir. Fitted into deep pits. Sir, camera is a little bit blurry. हाँ बच्चों, थोड़ा सा नेटवर्क मुझे भी दिख रहा है वीक जा रहा है, पर ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा. अभी धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगा. अदरवाइज आई शेयर द इमेज, डोंट वरी. ओके, Yes. परफेक्ट. थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है नेटवर्क का गड़बड़ हो रहा है, बट एनीवेज वी ट्राई. थीकोडोंट, well developed roots implanted into deep, क्या बताया था? Sockets and pits.
और इसलिए इसको कहा था थिकोडोन। इसका एग्जाम्पल क्या था? Mammals like Human. human. ह्यूमंस। परफेक्ट। सक्सेशन की बात करते हैं। सक्सेशन, कल एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट क्लियर हुआ, एमए बैच, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. Succession was Dr. MJ. Succession. What? Monophyodont. The second one is Diphyodont. diphyodont. And third one is Polyphyodont. polyphyodont. अभी तक एक मिसकंसेप्शन था कि हम लोग डाइफायोडोंट है. But I agree. I'm not denying this statement. But कहीं ना कहीं डाइफायोडोंट सारे टीथ के लिए नहीं, हम लोग कुछ के लिए हम मोनोफायोडोंट है और कुछ के लिए हम डाइफायोडोंट है. अब ये आप मुझे बताएंगे, फॉर हाउ मेनी टीथ यू आर मोनोफायोडोंट? 12 teeth. 12 teeth. वंस इन अ लाइफ टाइम, केवल एक बार आते हैं. ट्वाइस इन लाइफ टाइम और मेनी अ टाइम्स इन लाइफ टाइम. ओके, सो बच्चों हमारे डेंटल फॉर्मूला से उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं. डेंटल फॉर्मूला क्या कहता है हमें? व्हाट इज आवर डेंटल फॉर्मूला? 2102 डिवाइडेड बाई 2102. आपको वहां लिखना है, दिख रहा होगा तो मैं यही लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम. 2102 by 2102 into 2. Is it? But whose formula is this? Adults ki children? Children. Children. ये जो चिल्ड्रन का लिखा, इसमें फर्स्ट 2, इसको मैथ्स की तरह कैलकुलेट नहीं करना, नहीं तो 2 रह जाएगा, सब कट के नल हो जाएगा. इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स. तो जो बच्चे होते हैं उनमें 20 टीथ होते हैं. अब ये 20 टीथ गिर के मिल्क टीथ होते हैं, ये फिर से आते हैं. तो भाई ये 20, इसका टोटल कितना हुआ? 20 टीथ, इसका टोटल कितना हुआ? 20 टीथ. सो ये 20 टीथ क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ. ये 20 टीथ क्या कहलाते हैं? मिल्क टीथ. और लेकिन जब deciduous एडल्ट teeth. हो जाता है, यस बोलिए. और deciduous teeth, milk teeth और deciduous teeth. फिर से जोर से. Deciduous teeth, sir. Milk teeth also is also called as डेसिडियस, उसी को डेसिडियस कहते हैं. डेसिडुआ मतलब होता है, ग्रीक भाषा का शब्द है डेसिडुआ. डेसिडुआ मतलब शेडिंग ऑफ. ओके okay, sir. ओके. जब एडल्ट की बात मैं करता हूं तो 2123 by 2123 into 2. अब यहाँ पर कितने टीथ बढ़ रहे हैं? बी फेस ध्यान से समझेगा. मिताली समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्रसन्ना, सायन, समीदा, सानिया, रिया, स्वराज, Yes, sir. Yes, sir. ओंकार. चलिए बच्चों, ये हुआ इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स और मोलार्स. अब इसमें डिफरेंस कहां पर आ रहा है? देखिए, इंसीजर्स आर रिमेन सेम, मतलब ये फिर से आ जा रहे हैं. कैनाइन्स फिर से आ जा रहे हैं. बट प्रीमोलार तो पहले थे ही नहीं. तो व्हाई यू विल काउंट इट एज अ डाइफायोडोंट? वो तो लाइफ में एक ही बार आ रहा है ना, और वो जब एडल्ट हो रहे हैं तब आ रहा है. तो 2 + 2 4 2 8. अपर जॉ, लोअर जॉ, राइट एंड लेफ्ट. भाई यदि एक अरेंजमेंट आप देखें तो इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार. फिर इसके नीचे इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स, मोलार. फिर उसका राइट और लेफ्ट. तो मैंने कैसे काउंट किया? 2 + 2 4 into 2. दैट मीन्स 8. यानी आप मुझसे पूछें मोनोफायोडोंट तो मैं लिखूंगा 8 प्रीमोलार्स. चलेगा? Yes, sir. एंड यहां पर पहले जब बच्चे थे तब 2 मोलार्स थे और एक बाद में आया है, एक अपर और लोअर में ना. तो मैंने काउंट कैसे किया? एक्स्ट्रा 1 है ना, तो 1 1 2 और 2 2 4. सो 8 प्रीमोलार्स एंड 4 मोलार्स. यानी टोटल 12 टीथ के लिए आप क्या हैं?
टोटल 12 टीथ के लिए हम क्या हैं? Monophyodont. Monophyodont. लेकिन 20 टीथ के लिए हम लोग क्या हैं? Diphyodont. Diphyodont. तो नीट का बस यही सवाल बन रहा है कि फॉर विच टीथ और विच टूथ वी आर मोनोफायोडोंट और डाइफायोडोंट। फॉर 20 जो दूसरी बार आ जाते हैं, फॉर 20 जो दूसरी बार आ जाते हैं वी आर डाइफायोडोंट, और जो 12 आए ही नहीं थे डायरेक्ट एडल्ट में आए हैं, फॉर दैट वी आर मोनोफायोडोंट। अंडरस्टूड मृदुला? Yes, sir. भाग्यश्री, श्रेया, काव्य, स्वराज, Yes, sir. Yes, sir. स्वराज पांडे, स्वराज पांडे। ओके, प्लीज नोट। अर्निता, Excuse me, sir. यस एक्सक्यूज, बोलिए। Sir, can you please explain it again? कौन पूछा? Sir, Prapti. प्राप्ति। प्राप्ति बेटा कुछ नहीं बोला मैंने। जो बच्चों के टीथ होते हैं उसे कहते हैं 2102/2102 इंटू 2। मतलब अब ऐसे काउंट कीजिए, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। परफेक्ट। Yes, sir. और ऐसे इधर भी काउंट करूंगा, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। परफेक्ट। Yes. और ऐसे को डबल करना पड़ेगा मुझे नीचे लोअर जॉ के लिए। परफेक्ट। Yes, sir. यानी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स, और चार तरफ हुए। अग्री? Yes. अब इसमें क्या हुआ, चिल्ड्रन में जो प्रीमोलार सॉरी इंसीजर्स थे 2+2 वो एडल्ट्स में भी है, यानी दूसरी बार आ गए। अग्री? Yes. कैनाइन्स भी पहले थे, दूसरी बार भी थे, यानी फिर दूसरी बार भी आ गए। अग्री? Yes. Yes. बट प्रीमोलार्स तो पहले थे ही नहीं, वो तो डायरेक्ट एडल्ट्स में आए हैं, तो व्हाई शुड बी काउंटेड एज डाइफायोडोन? शुड बी काउंटेड एज मोनोफायोडोन। Yes, sir. इसीलिए मैंने लिख दिया 2+2 4 अपर जॉ लोअर जॉ एंड राइट एंड लेफ्ट, तो 2+2 4 इंटू 2 8 प्रीमोलार्स एंड 4 मोलार्स। यहाँ पर दो दो थे, यहाँ तीन तीन हो गए, यानी एक बाद में आया वो, एक एक है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो 4 काउंट कर लिए मोलार्स और 8 काउंट कर लिए प्रीमोलार्स। तो ऐसे 12 टीथ के लिए हम लोग क्या हैं? मोनोफायोडोन। Monophyodont. Yes, sir. Agree? Understood. Thank you, sir. Yes. चलिए, तो मैंने इसको एनसर्कल कर लेना है, जो पूछा जाना है आपको नीट में, सक्सेशन। मतलब जाहिर सी बात है, सक्सेशन पूछ रहा है मतलब वो क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पे। जिसको फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट पता है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। रेस्ट तो कुछ नहीं पूछा जाना है आपसे उसमें। जो अभी एक सवाल इन्होंने पूछा, मुझे ध्यान आया, मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ कह रहे हैं और इसी को लैक्टियल टीथ भी कहते हैं। लैक्टियल, लैक्टो मतलब मिल्क। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट, Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए, टीथ वाले पार्ट को मैं डन करता हूं बच्चों। टीथ वाले के बाद अब अपने को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आना है, दैट इज टंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टंग। और बहुत ध्यान से देखिए, टंग के स्ट्रक्चर को बनाते समय मैं एक तरीका बताता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से टंग को बनाइएगा। बढ़िया स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा उसमें ना, मैं सिर्फ थोड़ा सा हिंट आपको देकर रखता हूँ। सो दैट आप उसको बनाने की कोशिश सही ढंग से कर पाए।
समझ रहे हैं आप? स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं थोड़ा सा मैं किस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा हूं? Yes, sir. क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको टॉन्सिल्स बताने हैं, इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं ऐसे समझा पाऊं। परफेक्ट। अब यहाँ पर जो है वो टेस्ट बर्ड्स बनानी है, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ये स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बनाया। यानी जब आप जबान खोलते हैं तो बीच का जो एक फोर्क दिखता है वो एक स्ट्रक्चर अपन ने बना दिया दिस वन। पीछे टॉन्सिल्स है, वो टॉन्सिल्स में भी आपको बताऊंगा, वॉल्डियर रिंग में आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा। अंडरस्टूड? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे, स्क्रीन शेयर करके आपको ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा, बिकॉज एनसीईआरटी में टंग का इतना स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। Just a minute, sharing an image. Is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों स्ट्रक्चर को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें क्वेश्चंस 101% नीट के क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में अपर सरफेस को बताया गया है ऑफ ह्यूमन टंग। आई एम स्टार्टिंग विथ एपिग्लॉटिस। डू यू नो कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है उसे क्या कहते हैं? Buccal cavity. Glottis. ना, दैट इज गलेट। गलेट जो है GULLET, गलेट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग होती है, और ग्लॉटिस मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक की। डू यू नो दिस? Yes, sir. Okay, if not then you must note any somewhere। ग्लॉटिस के ऊपर की कवरिंग है एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज रेस्पिरेटरी ट्रैक। बच्चों जब आईने में, मिरर में आप देखते हो तो जीभ को अपना थोड़ा सा, टंग को थोड़ा सा लंबा बाहर निकाल के देखोगे, यू विल फाइंड 2 होल्स। कहीं ना कहीं एक ट्रैक जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक है एंड अनदर ट्रैक इज रेस्पिरेटरी ट्रैक। अग्री? Yes. अग्री? Yes, sir. स्टूडेंट्स, गर्ल्स, आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that opening of respiratory tract, the opening of respiratory tract is glottis. The opening of digestive tract is gullet. Again repeating, the opening of respiratory tract, glottis, of digestive tract, gullet. और ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग होती है, दैट इज एपिग्लॉटिस। क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाते समय वो ग्लॉटिस का ऊपर का कवरिंग एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है, सो दैट फूड कभी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना जा पाए। बट व्हेन वी ईट फूड इन हरी, जल्दी जल्दी में, घाई घाई में हम खाते हैं, देन समटाइम्स इट एंटर्स इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड फिर हमको ठसका लगता है, सो कॉल्ड एज इन मराठी ठसका लगता है, एंड हम वो बाहर निकाल देते हैं सारा। और जब वो बाहर निकलता है तब वो फिर प्रॉपर ट्रैक में जाता है। इसीलिए कहते हैं बड़े बुजुर्ग, कंसेप्ट समझेगा, कई बार मेरी क्लासेस में नीट का पार्ट कुछ नहीं है, लेकिन उससे 2-3 क्वेश्चन सुलझते हैं।
बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों वो कहते हैं? एनीवन कैन टेल मी? Sir, so that food does not enter in the respiratory Oh, tract. sir. इससे क्या होगा? बोलने से, बात करने से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और खाने का क्या लेना देना? Sir, it affects the opening of epiglottis. ऐसे समझते हैं बच्चों। मैंने आपसे पहले भी कहा था, when you try to speak something, हाँ गायत्री कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। So because when we speak, then we need to force air from the lungs of the respiratory tract and through the voice box and out from the glottis. So in this way, the glottis is opening, and then while swallowing food, it is closing. So that opening, closing. Sometimes food can go inside the from the glottis. Perfect. When you try to speak something, जब आप बात करने की कोशिश करते हैं तो आप एयर को बाहर निकालते हैं। मैंने बताया था, एयर को जब आप बाहर निकालते हैं तो कुछ बोल पाते हैं। अब जब एयर को बाहर निकालोगे तो वो खुलेगा, और उसी बीच में आपने खा लिया तो वो खुले वाले पार्ट्स के थ्रू चला जाएगा। इसलिए कहते हैं खाना खाते समय ज्यादा बात नहीं की जानी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Perfect. So one part is clear, that is glottis and epiglottis. अब आप यदि थोड़ा सा उसके नीचे आते हैं तो वहां पर बना हुआ है पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, है ना? पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल, और एक होता है ट्यूबल टॉन्सिल, वो भी बताऊंगा। 3 टॉन्सिल होते हैं। मैंने आपसे पहले भी बायो पढ़ाते समय आई ऑलरेडी कन्वेड यू कि यूजुअली व्हाट हैपेंस इन आवर सिस्टम, ऊपर वाले ने फ्रेम इतनी शानदार बनाई है दोस्तों कि पूरे सिस्टम में जगह जगह पर उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक आई शुड से पुलिस स्टेशन इज देयर टू चेक द एंट्री एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट एंटीजन और पैथोजन, है ना? तो यहां से कुछ जा रहा है तो डायरेक्ट ओपनिंग है, यहां से कुछ जा रहा है तो बीच में टॉन्सिल्स दे दी। एंड टॉन्सिल्स आर योर लिम्फेटिक ऑर्गन्स। टॉन्सिल्स आर योर लिम्फेटिक ऑर्गन्स, और लिम्फ सेल्स हमारी बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। डू यू नो दिस? Yes, sir. परफेक्ट। और यहां पर उन्होंने दे दिया लाइसोजाइम्स। यदि यहां कुछ चला जाए तो इतना हैवी सीक्रेशन होता है कि वो इंसेक्ट वो मर के ही बाहर आए, वो जिंदा जा ही नहीं सकता। तो डायरेक्ट ओपनिंग पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे सीक्रेशंस दे रखे, लाइक यहां पर सीक्रेशन दे रखा है, वैक्सी सीक्रेशन दे रखा है ना, सेरुमिनस ग्लैंड का सेरुमिन। तो ये सब क्या होते हैं, उसको प्रोटेक्शन के लिए दिए गए। अब ये बड़ी ओपनिंग है जहां से फ्रीक्वेंट आप कुछ लेते हैं। सो दिस प्लेस टॉन्सिल्स उन्होंने दे दी, है ना? एक मिसकंसेप्शन है, स्वेलिंग आ जाती, कुछ हो गई तो कहते हैं मुझे टॉन्सिल्स हो गए। टॉन्सिल्स हो गए नहीं, टॉन्सिल्स तो है ही, टॉन्सिल्स बढ़ गए क्योंकि इन्फ्लामेशन हो गया है, क्योंकि स्वेलिंग हो गई। और बढ़ क्यों गए? जब भी कोई एंटीजन पार्टिकल, बात को समझना, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उसको मारने के लिए नंबर ऑफ पुलिसमैन बढ़ेंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उनके बीच में फाइट होगी। यस और नो? Yes, sir. Yes. कुछ पुलिसमैन भी डिस्टर्ब होंगे या डैमेज होगा, और कुछ तो है फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शियस एजेंट भी डैमेज होगा। अग्री? Yes, sir. उन सब की वजह से यदि किसी प्रकार से इन्फेक्शन बढ़ गया है, वो इन्फ्लामेशन बढ़ गया है, तो वो स्वेलिंग हो जाती है। तो उसको कहते हैं टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स का बढ़ जाना, है ना? इट्स नॉट टॉन्सिल्स हो गए, वो तो है ही, वो तो पुलिस स्टेशन है ताकि यहाँ के सारे मटेरियल को रोका जा सके। ठीक वैसे ही जैसे बॉडी में यदि फीवर है दोस्तों, तो बॉडी में WBC के नंबर्स बढ़ जाते हैं। यदि कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में है तो आपकी बॉडी का WBC का नंबर बढ़ा हुआ होता है। क्यों बढ़ेगा भाई? जाहिर सी बात है, आपके सोल्जर्स बॉर्डर पे नंबर्स बढ़ जाते हैं यदि बाहर से कोई अटैक हो रहा हो तो, या कोई एंटीजन कोशिश कर रहा हो घुसने की, कोई टेररिस्ट कोशिश कर रहा हो घुसने की, तो वहां पुलिसमैन के नंबर्स बढ़ जाते हैं, सोल्जर्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं टू डिस्ट्रॉय देम। वैसे यहां पर होता है। अग्री? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Excuse me, sir.
Yes, excused. Sir, will you please repeat the term for swelling of tonsils? Pardon? Sir, will you please repeat the term for swelling of tonsils? Swelling of tonsils basically क्या होता है? When any infectious substance or agent enters through food or through whatever means, because I already told you, we have a opening that is eustachian tube, जिसमें कि सडनली आपके किसी भी प्रकार के लाउडर साउंड की वजह से आपका एक कॉमन रिफ्लेक्स मैंने बताया था. Is it? Yes, sir. Is it? बी फेज आपको बताया था कि नहीं? हाँ सर, Yes, बताया sir. था. Yes, sir. तो उससे कॉमन ओपनिंग, तो चाहे फॉरेन सब्सटेंस चाहे जहां से एंटर करे, राइट, फ्रॉम हियर 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 और हियर, वी हैव अ पुलिस स्टेशन, और आई शुड से अ लिम्फेटिक ऑर्गन टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दोज इन्फेक्शियस एजेंट. बट डेफिनेटली इफ दैट इन्फेक्शियस एजेंट एंटर्स, उसमें भी इतना पोटेंशियल तो होगा कि इट कैन स्टार्ट इन्फेक्शन टू योर बॉडी. एम आई राइट, गायत्री? Yes, sir. So when this tonsils or your defense system will recognize those substance infectious agents, they will fight, and might be the damage at both the parts that may lead to inflammation of those tonsils that increases, and the condition is known as tonsillitis. Understood? Yes, sir. Thank you, sir. Perfect. बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, बायो में जब भी वर्ड आएगा टाइटिस, इट शोज इन्फ्लामेशन. पैंक्रियाटाइटिस, हिपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस पैंक्रियास का, हिपेटाइटिस हिपेटिक सेल्स लीवर का, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल्स, मेनिंजाइटिस मेनिंजेस. तो टाइटिस वर्ड इन जनरल रिप्रेजेंट दैट इन्फ्लामेशन. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Back to the screen sharing. Perfect. So, अब यदि मैं इस पर आगे बढ़ता हूं बच्चों, तो एपिग्लॉटिस मैंने बता दिया, पैलेटाइन टॉन्सिल वी हैड डन विद दिस, लिंगुअल टॉन्सिल में भी आपको टॉन्सिल के लिए वॉल्डर रिंग बताने वाला हूं. अब मैं बेसिक टंग का स्ट्रक्चर देखूं तो आप साइड में पॉइंट्स देख भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं. हाईली मस्क्यूलर, एनसीईआरटी में जहां पर भी टंग के बारे में थोड़ा लिखा हो उसको लिख दीजिए, हाईली मस्क्यूलर. प्रोट्रूसिबल मतलब प्रोजेक्टेड होती है, माउथ से बाहर निकलती है, प्रोट्रूसिबल. फ्लोर ऑफ बकोफेरेंजियल कैविटी, बको बकल, फेरेंजियल फेरेंक्स, ओरल कैविटी. तो फ्लोर ऑफ बकोफेरेंजियल कैविटी, हाईली मस्कुलर, प्रोट्रूसिबल, फ्लोर ऑफ बकोफेरेंजियल कैविटी, lined by stratified squamous epithelia. Now everyone knows what is stratified. Do you know this? Layered. Layered structure, stratified. सबसे highly muscular भी है, and for your information, the strongest muscle in your body. है ना? Okay. अपर सरफेस जो होता है उसके बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले, तो उसे कहते हैं पैपिलीज. अपर सरफेस है स्मॉलर प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिलीज, और उन पैपिलीज पर होती हैं टेस्ट बर्ड्स. बात को समझिएगा, टंग पर पैपिलीज है, पैपिलीज में टेस्ट बर्ड्स, और वो टेस्ट बर्ड्स मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है. 1 is sweet and salt, which is the apical region. Sour is bit middle region. Salt is bit lateral region, middle lateral, and bitter is the posterior most part, जहां पर आपको टेस्ट अलग अलग आता है. Sweet and salt, then sour, then salt and bitter. ऐसे 4 टेस्ट बर्ड्स मैंने बताए. बट टेस्ट बर्ड्स जिस पर हैं, those are papilles. टेस्ट बर्ड्स जिस पर हैं, those are papilles. और वो पैपिलीज जो है टोटल 4 पैपिलीज होती है, टोटल 4 पैपिलीज होती है. तो आपको लिखना होगा मेरे साथ पैपिली नंबर 1. आपको लिखना होगा मेरे साथ पैपिली नंबर 1.
Ready to write? Ready to write? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Number 1, circumvallate. Number 1, circumvallate. Noted? Yes, sir. बेटर है कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके हो क्योंकि स्पेलिंग भी आपको बननी चाहिए. ओके. नंबर है circumvallate. Number 2 is fungiform. Fungi. Fungiform. Circumvallate and fungiform. Fungi. You can see here. Circumvallate. Number 2 is fungiform. Number 3 is foliate. And number 4 is filiform. Circumvallate, fungiform, foliate and filiform. Circumvallate के आगे डैश करके लिखेंगे. सारा नहीं नोट करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको. Circumvallate में लिखेंगे circular, 8 to 12, largest, circular, 8 to 12 in numbers, largest, and with taste buds. यानी एक ऐसी पैपेली है जिस पर टेस्ट बर्ड्स होती हैं. Circumvallate मैंने कहा circular, 8 to 12, largest and having taste buds. Spandan, noted? Yes, sir. Number 2 fungiform. Number 2 fungiform. मैं जो बोलूंगा वही लिखें आप. फंजी मतलब फंगस. फंगस से समझ में आएगा